الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. نحن درسنا في الحصة الماضية أقسام الفعل. أقسام الفعل كان هناك ثلاثة أقسام. وما هي هذه الأقسام؟ الفعل الماضي، الفعل المضارع، الفعل المضارع وفعل الأمر. نحن درسنا هذه كلها في حصة الماضية. فعل الأمر، الفعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر نحن درسنا معه قواعد. إذن الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. وكان مثاله كتب، درس، جلس. هذه كلها أمثلة لفعل الماضي. وفعل الأمر هو كل فعل يدل على حصول عمل في زمن الحاضر أو المستقبل، فلا بد أن يكون مبدوءا 4 أحرف. ونحن ذكرنا من قبل حروف أتين. وبعد ذلك مثلا يضرب، يكتب، يرجع، يجلس، يمضي، وإلى آخره. فعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبل، هذا خاص بالمستقبل. من اليوم ندرس الفعل الماضي. هذه السطر الأولى. الأول عندنا ندرس. نعم، عندنا اليوم حصتنا لفعل الماضي. الفعل الماضي ما معنى الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هذا حصتنا في أمثلته. نحن درسنا الكلمة وأقسامها، ومنها نحن ندرس الفعل، والفعل 3 أقسام. جيد. ونحن نبدأ بالقسم الأول وهو فعل الماضي. قبل أن أبينكم فكيف أنتم تعرفون هذا فعل الماضي، وهذا الموضوع هذا طويل جدا، وهناك علامات الفعل الماضي، فلا نذكرها لأن هذا يحتاج إلى وقت كثير، وكذلك ليس هنا موضوعنا للتبيان هذا. وإن شاء الله في مقبل الشهور عندما يأتي هذا الموضوع أنا أبينكم بطريقة سهلة إن شاء الله. وأما الآن عندنا فعل الماضي. وقبل فعل الماضي هناك باللغة العربية المصدر. فهمتم؟ المصدر. بل اتركوا المصدر، ولكن أنا أبينكم شيئا. الفعل الماضي هناك باب. هذا تذكرون، هذا يأتي في جميع القواعد. نحن نذكر هذا الشيء. باب فعل يفعل،
यफ़इलु। वकज़ालिक हुनाका अबवाब उख़रा फ़ाइल यफ़इलु, फ़अल यफ़अलु, फ़अल यफ़अलु। वहुनाका इंशाअल्लाह सनज़कुरु हाज़िहिल अशिया अयदन। वअम्मा الآن فقط أنتم تذكرون هنا تنظرون هذا فعل 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 هذا فعل هذا فعل علامته انظروا فعل فعل الماضي يفعل يفعل هذا فعل مضارع. وهناك افعل افعل فعل الأمر فعل الأمر فعل الأمر افعل افعل فعل يفعل افعل فعل يفعل افعل. وعندنا هناك ثلاث كلمات نعم عندنا كلمة وله ثلاثة أحرف وله ثلاثة أحرف. ما هي؟ مثلا انظروا هذا فا هذا فا هذا عين هذا لام فعل. هذه ثلاثة حروف. إذا أنت وجدت في أي كلمة هناك ثلاثة أحرف فأنتم ماذا تفعلون؟ ثلاثة أحرف فأنتم ماذا تفعلون؟ أنتم تقولون أن هذا فعل الماضي. وكذلك هناك الشيء الذي اليوم أنا أدرسكم وهي التصريفات. إن شاء الله عندما حفظتم هذه التصريفات فأنتم تفهمون هذا الشيء. فعندما يأتي في عبارة أو في جملة مثل هذه الكلمات وأنتم تفهمون أن هذا فعل الماضي. فهمتم؟ فإن شاء الله نحن نذكر فعل هذه ثلاثة أحرف فعل فا عين لام هذا باب فعل. ما هو باب فعل؟ انظروا نعم فعل على وزن فعل نقول ضرب 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 ثلاثة أحرف على وزن فعل. هذا يكون على وزن فعل. ضرب نصر نصر جلس وعد. انظروا هذه كلها أفعال. هذه كلها أفعال الماضي أفعال الماضي. ضرب نظر جلس وعد. إذا أنت تريد أن تبحث الكلمة هذه فأنتم تبحثون في القاموس تفعلون ثلاثة أحرف. إذا وجدت هناك ثلاثة أحرف فانظروا افعلوا هكذا فعل هذا باب فعل ضرب على وزن ضرب على وزن فعل ضرب على وزن فعل على وزن فعل نصر على وزن فعل جلس على وزن فعل وعد على وزن فعل. فأنتم ماذا تفعلون الآن؟ ये आज इंशाल्लाह आपको इसका मुख्तसर तरीका बताता हूँ। अलफ़ेल आज जो हम पहले अलकलिमा और उसकी अक़साम पढ़ चुके हैं। अलकलिमा और उसकी अक़साम में हमने पढ़ा था कि इसम है, फ़ेल है और हर्फ है। और सबसे पहले हमने इसम को तो छोड़ दिया, उसके बाद जो हमने फ़ेल को ले लिया। और फ़ेल की तीन अक़साम हैं, फ़ेल माज़ी, मुज़ारे और फ़ेल अम्र। तो ये फ़ेल माज़ी जो है ये पास्ट का, जिस तरह हमने क़ायदा भी पढ़ा था, आपने याद भी किया था, उसको मैंने पिछले सबक में अच्छी तरह समझा दिया था। तो आपने वो क़ायदा भी याद रखना है। अरबी के अंदर जो काम ज़माना माज़ी जो गुज़र चुका है ज़माना, उसके अंदर जो होने वाला काम है, जो काम हुआ तो उसको फ़ेल माज़ी कहते हैं। उससे ये पता चलता है कि ये काम फ़ेल माज़ी में हुआ है। अब इसकी कुछ निशानियाँ होती हैं कि हम इसको कैसे समझेंगे कि ये फ़ेल माज़ी है, मुज़ारे है या फिर फ़ेल अम्र है। तो इसकी तफसील मुख्तसर ये है कि आपने सबसे पहले 3 हरूफ देखने हैं। जब ये 3 हरूफ देख लेंगे, असमें अबवाब होते हैं अरबी के अंदर, तो वो इंशाल्लाह आपको तफसील थोड़ा सा बता देंगे।
अभी जो चीज़ अभी समझाने का मकसद है वो है गर्दान। जब ये आप गर्दान कर लेंगे तो उसके बाद इन चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। असल में ये आपने बाब को याद रखना है। बाब दरवाज़ा होता है, बाब। जब आप उसके अंदर दाखिल होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसमें ये बाब है, तो इसमें जब आप दाखिल होंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मालूम होगी कि ये फ़िल मादी की हैं, तो उसमें आपने वो चीज़ याद रखना होती है। तो बा फ़ाला असल होता है फ़ाला। देखिए ज़राबा है, इसमें 3 हरूफ हैं, 4 हरूफ भी होते हैं, 5 भी होते हैं, ठीक है। कुछ इसमें ज़ायद भी होते हैं, तो वो उनकी तफसील भी आगे आएगी। तो फिलहाल ये समझे कि ये जो फ़ाला इसमें 3 हरूफ हैं, बाब फ़ाला, ठीक है। असल बाब होता है, बाब क्या है? फ़ाला। ये फ़ाला एक बाब है। फिर उसमें देखते हैं कि कितने हरूफ वाला है। ये 3 हरूफ वाला है। सबसे पहला हर्फ क्या है? फ़ा है, दूसरा आइन है, तीसरा लाम है। तो इसी वजन के ऊपर जो जो कलिमात, जो जो आप अल्फाज अदा करते हैं उसमें देखेंगे कि यार ये उसी वजन पे आ रहा है। अगर इसी वजन पे आ रहा है तो इसका समझेंगे ये फ़िल मादी है, ये फ़िल मादी है। जैसे है ज़ारबा, नसरा, जलसा, वअदा, ठीक है। ज़ारबा, फ़अला, सब के ऊपर ज़बर है। फ़िल मादी तो हमेशा ज़बर होती है तीनों हरूफ पर, ठीक है। बाकी जो तफसील आएगी उसमें थोड़ा सा आपको और चीज़ भी इसमें इजाफी नज़र आएगी, वो भी बता देंगे। देखिए फ़ाला, दरबा अला वज़नी फ़ाला, अरबी में हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। दरबा अला वज़नी फ़ाला, दरबा जो है फ़िल फ़ाला के वज़न पर है, दरबा फ़ाला के वज़न पर है। नासरा फ़ाला के वज़न पे है, जालसा भी फ़ाला के वज़न पे है, वादा भी फ़ाला के वज़न पर है। तो अब हमने इसकी और ब्रांचेस बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? जिसको हम तसरीफ कहते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम आते हैं तसरीफात। इसको तसरीफात कहते हैं। आ रही तसरीफात, तसरीफात, आ रही तसरीफात, तसरीफात, आ रही तसरीफात। फल-अव्वलु मसलन ज़ारबा, 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 ज़ारबू, ज़ारबू, ज़ारब। ज़ारबा हादिही सलासा, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, 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 हादिही सलासा। ثم चलिए इतना इला हुना नक्तफी فأنا أفهمكم هناك شيئا. نعم هذه ثلاثة، ضرب، ضربا، ضربوا، هذه كلها للغائب، كلها للغائب، هذه كلها للغائب. ضرب للمفرد، ضرب للمفرد، للمفرد المذكر، للمفرد المذكر، للمفرد المذكر. ضرب للمثنى، للمثنى، للمثنى المذكر، للمثنى المذكر. ضربوا للجمع، للجمع المذكر، للجمع المذكر، للجمع المذكر. ثم نأتي إلى هنا
للمفردة المؤنث، للمفردة المؤنث، للمثنى المؤنث، للمثنى المؤنث، للجمع المؤنث، للجمع المؤنث. انظروا: ضرب، ضربوا. ضرب لشخص واحد وهو مذكر، نقول للمفرد المذكر ضرب، هو شخص واحد، هو ضرب. ضرب للمثنى معناه لشخصين، نستعمل لشخصين، للمثنى المذكر لا مؤنث. ضربوا للجمع كثير المذكر، وهذا للجمع المذكر. هناك ثلاث. هذه ضربت للمفردة المؤنث، ضربت للمثنى المؤنث، ضربنا للجمع المؤنث. चलिए आज हमने गर्दान करनी। तस्रीफात का मतलब होता है गर्दान। तो गर्दान में क्या है, हमारे पास ये सीगे हैं, ये गायब के सीगे हैं, बाकी गायब के होते हैं, मुखातिब के होते हैं और मुतकल्लिम के सीगे होते हैं। आज हमने फिर गायब के पढ़ने हैं। गायब के 6 सीगे हैं और 3 जो है 3 गायब मुज़क्कर, 3 गायब मुज़क्कर के सीगे हैं और 3 गायब मुअन्नस के सीगे हैं। टोटल जो है 14 सीगे हैं हमारे पास टोटल जो सीगे हैं वो 14 सीगे हैं, 14 सीगे हैं, जिनकी तफसील आएगी अगले सबक में इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे बाकी का जिक्र करना इंशाल्लाह। तो 3 मुज़क्कर के हैं, 6 गायब के सीगे हैं, 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के। और इनमें सबसे पहले तफसील के साथ देखते हैं। सिंगुलर से एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है और ज़रबा एक शख्स के लिए, ज़रबा अलिफ के साथ, ज़रबा 2 शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, ज़रबू ये 3 शख्स या उससे ज़्यादा के अशखास के लिए इस्तेमाल होता है। और ये 3 मुज़क्कर के हैं, 3 ये मुज़क्कर के हैं, मुफ़रद, मुसन्ना, जमा, ये मुज़क्कर के 3 सीगे हो गए। फिर आते हैं मुअन्नस की तरफ। ये 3 मुअन्नस गायब के सीगे हैं, मुज़क्कर गायब, मुअन्नस गायब के सीगे। ज़रबत एक औरत, ज़रबता 2 औरतें, ज़रबना 3 या उससे ज़्यादा जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इसको कहेंगे ज़रबत लिलमुफ़रदतिल मुअन्नस। फहमतुम? ज़रबता लिलमुसन्ना मुअन्नस, ज़रबना लिलजमइल मुअन्नसी। वहादा काना सित्ततु सीग, हादिही सित्ता सीग, नदरुसु 14 الآن ننقص 6 بقي 8 منها نحن ندرس في الحصة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.